नस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी। बाबा हुर्रियत के जसद खाकी को पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में लपेटा गया। सफाक भारतीय फोर्सेज ने मैयत को अहले खाना से जबरदस्ती छीन लिया। मज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। मुंह अंधेरे हैदरपुरा के कब्रिस्तान में सैयद अली गिलानी की तदफीन कर दी गई। पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी बाबा हुर्रियत के जस्तानियों से ज्यादा पाक मुजाहिद, इलाके पाकिस्तान के सिपाही थे। सारी जिंदगी भारत के गासिबाना कब्जे को ललकारा। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। आखिरी सांस तक नजरबंद रहे मगर उसूलों पर समझौता नहीं किया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा की रेलत पर पाकिस्तान भी सोगवार। आज मुकम्मल सोग कौमी परचम सिरनकों। अजीम कश्मीरी और हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर में अदा की गई। सिविल सोसाइटी, ताजरों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। चकवाल के सपूत कैप्टन सैयद जैन अली वतन की खातिर शहीद हुए। सच की जानिब से शहदा, गाजियों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को खराज अकीदत। उम्मीदें दम तोड़ गईं। महंगाई के सुनामी में आवाम डूब गए। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं और सियासी और समाजी रहनुमा भर में अदा की गई। ने शिरकत की। शहादत है मतलूब माले गनीमत न किश्वर कुशाई। चकवाल के सपूत कैप्टन सैयद जैन अली वतन की खातिर शहीद हुए। सजा, गाजियों और उनकी जानिब से शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को उम्मीदें दम तोड़ गईं। महंगाई के सुनामी में खुरनोश की कीमतें में आवाम डूब गए। आसमान को छूने लगे और सियासी और समाजी रहनुमा भर में अदा की गई। ने शिरकत की। इसके खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया की गफलत। खैरपुर नाथन शाह के शहरी पीने के पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट गैर, प्लांट में लगी मशीनरी नाकारा, कोई पूछने वाला नहीं। हबीबाबाद के सरकारी अस्पताल में तूफान बदतमीजी की नई मिसालें कायम। शहरियों का डॉक्टर्स के साथ हतक आमेज रवैया मामूल। पैरामेडिकल स्टाफ और अमला सरापा एहतजाज।
السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا کو کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بھارت الحاق پاکستان کے حامی حریت رہنما علی گیلانی کے جسد خاکی سے بھی خوفزدہ، سخت پابندیوں اور محاصرے میں تدفین صبح 4:45 بجے زبردستی کروا دی گئی۔ صرف اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار تدفین میں شریک ہوئے۔ قابض بھارت کی درندہ صفت فوج نے سید علی گیلانی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مرحوم کے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی پکڑ دھکڑ کے لیے چادر و چار دیواری کا تقدس بھی پامال کرتے ہوئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بزرگ حریت رہنما سید علی کو ان کے آبائی شہر حیدر پورہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بھارتی فورسز نے سید علی گیلانی کی تدفین شہدائے قبرستان میں نہیں ہونے دی۔ علی گیلانی کی تدفین کے دوران صرف قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی، جبکہ سید علی گیلانی کی تدفین بھارتی ملٹری حصار میں کی گئی ہے۔ حافظ آباد میں سپورٹس فیسٹیول شروع ہو گیا۔ افتتاحی روز نیزہ بازی کے مقابلے منعقد کیے گئے اور پودے بھی لگائے گئے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے حافظ آباد میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کی جانب سے سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ مختلف محکموں کے افسران، مقامی کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان بھر سے دلو برادری کے معززین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک خضر حیات دلو کو صدر اور ماہر حمید انور دلو کو برادری کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ مشترکہ طور پر بنائی گئی کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ ماہر افضل دلو نے معززین برادری سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نو منتخب عہدیدار اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے اور اپنی برادری کی حقیقی طور پر خدمت کریں گے۔ عارف والا کے پسماندہ علاقوں میں شہری تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ نہ سیوریج سسٹم ہے، نہ سولنگ نالیاں، نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ شہریوں کا جینا اجیرن ہو گیا۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ تحصیل عارف والے کے پسماندہ چک نمبر 137 بھی کرانا والا زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے محروم۔ نہ سیوریج سسٹم، نہ سولنگ نالیاں، نہ پینے کا صاف پانی اور چک کے ساتھ ملکہ آبادیاں بجلی سے بھی محروم۔ چک کی عوام کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، کوئی والی وارث نہیں ساڈا، نہ کوئی بنتا ہے۔ یہ ووٹ شوٹ آندا تے پٹ لیندے تے کوئی سانو پیچھے آدن بھائی چلے جاؤ۔ ساڈے بازاراں چ کوئی چیز دی نہیں سہولت جناب، کھیڑیاں کوئی نہیں، نہ کوئی سولنگ، نہ کوئی ساڈی پکی رستہ ہی ساڈا کوئی نہیں، نہ کوئی ساڈے ہسپتال، نہ کوئی سکول، کوئی چیز بھی نہیں ہے جی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا تبدیلی کے نام پر، لیکن تبدیلی سرکار مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے چک کی عوام کی داد رسی کریں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندا پانی کھڑا ہے۔ نکاسی آپ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اعلیٰ کام نوٹس لیں، پینے کا صاف پانی، سیوریج سسٹم، سولنگ نالیاں سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ کندکوٹ میں ہاتھ سے بنائی گئی کشتیاں خوبصورتی اور بناوٹ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ بیروہی۔
कंदकोट में कारीगरों के जानिब से आज भी लकड़ियों को काटकर हाथों से तराश कर कश्तियां बनाने में मसरूफ है, मगर महंगाई के इस दौर में मेहनत ज्यादा और रकम कम मिलने के वजह से कश्तियां फरोख्त करने वाले हजरात शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर कच्चे के लोग आते हैं, वो क्योंकि रास्ते में पानी होता है ना, अपने मन सफ़र के लिए ले जाते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, वो अपने शौक के लिए ले जाते हैं, कहीं दरिया मच्छी वगैरह मारने के लिए। लकड़ी से बनी हुई ये कश्तियां न सिर्फ माहिगीरों के काम आते हैं, बल्कि ये कश्तियां समंदर के साथ साथ दरियाओं में सैर व तफरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंधु दरिया कच्चे के इलाके में आमदरफ के लिए वाहिद जरिया कश्तियां होते हैं। इन कश्तियों में लोग मोटरसाइकिल, गाड़ियां और दिगर साजो सामान एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं। इन कश्तियों को तफरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ बच्चे और बूढ़े इन कश्तियों में सफर करते हुए लुत्फ अंदोज होते हैं, तो दूसरे जानिब मछली भी अपने कश्तियों से अपनी मछलियां पकड़ने के लिए कारोबार भी करते हैं, जिनसे उनका घर का चूल्हा जलता है। कोटडीजी की वादी मेहरान में कायम तारीखी शीश महल सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बना रहता है। हुकूमत की गफलत के बाद शीश महल अपनी खूबसूरती खोने लगा। मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट। वादी मेहरान पर कायम शीश महल मीर फैज मोहम्मद टालपुर ने 1895 में तामीर करवाया। शीश महल की तामीर के लिए कश्मीर और राजस्थान के माहिर कारीगर बुलाए गए थे। सारी दुनिया से आने वाले सियाह कारीगरी की महारत देखकर हैरान रह जाते हैं। 150 साल पुरानी महारत आज के जदीद दौर में कारीगरी की आला मिसाल है। दूर दराज से आने वाले सियाहों का कहना है कि ये मीर फैज़ मोहम्मद खान टालपुर उनके दौर में 1895 या 90 के करीब ये बना था। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, और जब हम घूमने आते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि शीश महल को खंडाट से होने से बचाया जाए और उसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि सियाह उसे देखकर लुत्फ अंदोज हों। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान उज्जैन, सच न्यूज़, कोटडीजी। हाफिजाबाद के नवाई इलाके ठट्टा कांजवा के शाहिद हुसैन ने कबूतर पाल रखा है। कबूतर ने अपने मालिक से वफा की लाजवाब मिसाल कायम कर दी। सफर और काम काज के दौरान कबूतर मालिक के साथ साथ रहता है। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के नवाई इलाका ठट्टा कांजवा के रहायशी शाहिद हुसैन नामी किसान को जानवर और परिंदे पालने का लाजवाब शौक है। घर में हर तरह के परिंदे और जानवर पाल रखे हैं। शाहिद हुसैन ने काले रंग का एक ऐसा वफादार कबूतर भी पाल रखा है जिसकी वफा पर शक नहीं किया जा सकता। कबूतर मालिक के मुंह से दाना दुनका खाता है। मालिक सफर पर हो या फिर काम काज में मसरूफ, कबूतर हर वक्त मालिक के साथ रहता है। कभी पीछे पीछे उड़ान भर ली, कभी मालिक के कंधों और हाथों पर बैठ गया। शाहिद हुसैन का कहना है, मुझे कबूतर पालने का बचपन से शौक है। मैं बचपन से कबूतर पालता रहा हूँ। इस कबूतर को मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये मेरे साथ मोटरसाइकिल के साथ उठता है। इसको मैं मुंह से दाने खिलाता हूँ। मैं जिधर भी जाता हूँ ये मेरे साथ साथ रहता है। मैंने ये कबूतर बचपन से ही पाल रखा है। काम काज के लिए मैं कहीं भी जाऊं तो ये मेरे साथ साथ रहता है। शाहिद हुसैन के बेमिसाल कबूतर की वफात देखकर ज़माना जदीद में पुराने ज़माने में कबूतर की पैगाम रसाई की याद ताज़ा हो जाती है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। सिनामा के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन लगवाने आने वाले शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, बताएंगे मुनीर हुसैन। RSC अस्पताल सिनामा और RSC अस्पताल कस्बा गुजरात में वैक्सीन न होने की वजह से शहरी परेशान हैं। अस्पताल में बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीन करवाने के लिए आए हुए हैं। शहरियों के अस्पताल के बाहर अहाते में डेरे डाले हुए बैठे हैं कि कब वैक्सीन आएगी। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से सुबह 7 बजे से वैक्सीन करवाने के लिए आए हुए हैं। गर्मी है और धूप में हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं। शहरियों का कहना है कि अमले से बात करते हैं तो अमला जवाब नहीं देता और बदतमीजी से पेश आता है। एक्स्ट्रा अमला जो है ना हम यहाँ तैनात कर रहे हैं, जिससे 1-2 और काउंटर जो है ना अपना वर्क शुरू कर देंगे। शहरियों का कहना है कि RSC अस्पताल सिनामा और RSC अस्पताल गुजरात में वैक्सीन मुहैया की जाए। वैक्सीन लगाने वालों के लिए रश, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि एक तो वैक्सीन लगवाने के लिए जो काउंटर हैं बढ़ाए जाएँ और वक्त पर वैक्सीन मुहैया की जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। कोरोना के कातिल वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। 4103 नए कोरोना केसेज रिपोर्ट हुए हैं।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4103 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,67,791 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,96,326، سندھ میں 4,33,931، خیبر پختونخوا میں 1,63,010، بلوچستان میں 32,282، گلگت بلتستان میں 9,952، اسلام آباد میں 99,910، جبکہ آزاد کشمیر میں 32,282 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 89 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,978 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,959، سندھ میں 6,924، خیبر پختونخوا میں 5,015، اسلام آباد میں 866، بلوچستان میں 339، گلگت بلتستان میں 173 اور آزاد کشمیر میں 702 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,78,71,620 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,651 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,48,872 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,717 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ لیا کے نواح علاقے میں ڈیری سیفٹی ٹیم نے چھاپہ مار کر مضر صحت 1300 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ بتائیں گے ظہور دورانی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جیلساد ملاوٹ مافیا کے خاتمے کے لیے سرگرم۔ ڈیری سیفٹی ٹیم لیا نے لبے نیلم پل کے قریب ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپہ مارا۔ اس دوران مصنوعی طریقہ سے تیار کیا گیا 1300 لیٹر دودھ کو تلف کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ملزمان وائی پاؤڈر اور دیگر کیمیکلز کی مدد سے جیلی دودھ تیار کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران 125 کلو وائی پاؤڈر، دودھ سٹور کرنے والے ڈرم اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ زہریلا دودھ لیا شہر اور مضافاتی علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ سے بات کرنے پر ان کا کہنا تھا عوام کو دودھ کے نام پر زہر پلانے والوں سے عینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا غیر معیاری خوراک پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، ساک نیوز لیا۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے نوجوان کیپٹن سید زین علی ہمدانی نے 24 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سچ نیوز کی ٹیم اور چکوال کے عوام شہید کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ چکوال کی سرزمین شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش فرمائی۔ اسی زمین کے نوجوان کیپٹن سید زین علی ہمدانی شہید کا تعلق بھی چکوال سے ہے کہ جس نے دوران ڈیوٹی گولی لگنے سے جام شہادت نوش فرمائی۔ کیپٹن زین علی شہید میرا بھانجا تھا، ماں باپ کا اکلوتا تھا، جو دوران ڈیوٹی جیلم جو ہے وہ اس کو گولی لگنے سے اس کی شہادت کی خبر ملی تو یقین کرے پورا خاندان کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ایک فوج کے لیے ہم نے بھی ایک قربانی دے دی ہے۔ یہ ہمارے اور بھی اس طرح کے جوان ہوتے تو ہم فوج پہ قربان کر دیتے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی مٹی کے لیے قربان کر دیتے۔ کیپٹن سید زین علی ہمدانی شہید اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی شہادت پر ان کی والدہ کو بھی فخر ہے۔ اس کی شہادت پہ ہمیں اتنا فخر ہے۔ اس بچے نے تھوڑی سی عمر میں ہماری ساری فیملی کا نام بلند کر دیا، تو اللہ پاک اس کو درجات بلند کرے، اور باقی جو میرے وطن کے بچے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ درجہ بہت جو ہے بلند درجہ ہے۔ کیپٹن سید زین علی ہمدانی نہ صرف ایک اچھے آرمی کیپٹن تھے بلکہ فٹ بال، کرکٹ اور باکسنگ کے بھی اچھے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے 24 سال کی عمر میں 30 جنوری 2017 کو جام شہادت نوش فرمائی۔ کیمرامین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ خانیوال سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا بڑا سکینڈل سچ نیوز منظر عام پر لے آیا۔ بتا رہے ہیں رانا طاہر۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ خانیوال کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے۔ ضلعی اور تحصیل لیول پر تعینات سپورٹس افیسر گھر بیٹھے اپنی تنخواہیں وصول کرنے لگے ہیں۔ 1.5 سال سے جہانیہ میں تعینات خاتون سپورٹس افیسر مشل فاطمہ ڈیوٹی پر آئے بنا ہی تنخواہیں وصول کرتی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سپورٹس افیسر جہانیہ ہارون آباد کی رہائشی ہیں اور وہاں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بطور پروفیسر نوکری کر رہی ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی دفتر بھی نہیں ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں یہاں پہ، لیکن کوئی آتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپورٹس افیسر ماجد گجر برے والا کے رہائشی ہیں، آفس آئے بنا ہی ماہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ سپورٹس افیسر کبیر والا نور خان جو کہ کبھی اپنے آفس نہیں آئے، کبیر والا کے مقامی کھلاڑیوں نے آواز اٹھائی تو اپنا ٹرانسفر ملتان کروا لیا۔ ادارے ہیں، تنخواہیں ہیں اور فنڈز ہیں، لیکن کھلاڑی کو کچھ نہیں ملتا۔ سپورٹس افیسر جو ہیں ان کو نام تو سنا ہے، کبھی ان کو ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔
तो इन हालात में ख़ास तौर पे ये कबीरवाला एक बहुत बड़ी तहसील है और यहाँ पर बहुत टैलेंट है। आपका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर खानेवाल मलक गुलाम मुर्तज़ा का अपने बेटों को बतौर डेली वेजेस मुलाजमिन खाहें देने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी कई दिन से गैर हाजिर। स्पोर्ट्स ऑफिस खाली होने से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खैरपुर नातन शाह के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न हो सका। प्लांट में लगी मशीनरी नाकारा हो गई। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नातन शाह के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए लगाया गया फिल्टर प्लांट पिछले कई बरस से बंद। फिल्टर प्लांट में लगी मशीनरी नाकारा, शहरी साफ पानी पीने को तरस गए। फिल्टर प्लांट के अंदर मुखड़ों ने अपने जालों और चूहों ने अपना आशियाना बना लिया। साफ पानी न मिलने पर शहरी दूर दराज खेतों में लगे हैंड पंप और ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर। साफ पानी न मिलने पर शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपया माले से लगाया गया फिल्टर प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। आरओ प्लांट ये लगा हुआ है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा है। हमें तकलीफ है बहुत, पैसों से लोग यहाँ पर पानी ले रहे हैं और हम दूर दूर से पानी ले आते हैं अपने मोटरसाइकिलों पर। ये आरओ प्लांट हमें दिया तो गया है, लेकिन ये खाली देखने के लिए दिया गया है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग और नौजवान पेट समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर खस्ताहाली का शिकार फिल्टर प्लांट शुरू करके साफ पानी मुहैया करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच टीवी न्यूज़, खैरपुर नातन शाह। कोटद्दू का मिनी बाईपास इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। बारिशी पानी से बाईपास तालाब में तब्दील हो गया। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू मुंतखब नुमाइंदों की 3 साला कारकर्दगी पर सवालिया देखने के लिए दिया गया है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग और नौजवान पेट समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर खस्ताहाली का शिकार फिल्टर प्लांट शुरू करके साफ पानी मुहैया करने का टीम के साथ रजब अली का मुतालबा किया। सच टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोटद्दू का मिनी बाईपास इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। बारिशी पानी से बाईपास तालाब में तब्दील हो गया। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किल। काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू मुंतखब नुमाइंदों की 3 साला देखने के लिए दिया गया है, कारकर्दगी पर सवालिया पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग और नौजवान पेट समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला का हुकूमत सिंध से नोटिस हो चुके हैं। शर्ती से लेकर खस्ताहाली का के साफ पानी मुहैया करने का टीम के साथ रजब अली का मुतालबा किया। सच टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोटद्दू का मिनी बाईपास इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। बारिशी पानी से बाईपास तालाब में तब्दील हो गया। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किल। काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू मुंतखब नुमाइंदों की 3 साला देखने के लिए दिया गया है, कारकर्दगी पर सवालिया पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग शिकार फिल्टर प्लांट शुरू कर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला का हुकूमत सिंध से नोटिस हो चुके हैं। शर्ती से लेकर खस्ताहाली का के साफ पानी मुहैया करने का टीम के साथ रजब अली का मुतालबा किया। सच टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोटद्दू का मिनी बाईपास इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। बारिशी पानी से बाईपास तालाब में तब्दील हो गया। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किल। काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू मुंतखब देखने के लिए दिया गया है, कारकर्दगी पर सवालिया नुमाइंदों की 3 साला पानी नहीं मिल रहा है। पानी न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शिकार फिल्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। शहरियों का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर खस्ताहाली का के साफ पानी मुहैया करने का टीम के साथ रजब अली का मुतालबा किया। सच टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोटद्दू का मिनी बाईपास शिकार है। बारिशी पानी से बाईपास तालाब में तब्दील इंतहाई खस्ताहाली का आमद रफ्त में शदीद मुश्किल हो गया। शहरियों को। काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू मुंतखब देखने के लिए दिया गया है, कारकर्दगी पर सवालिया नुमाइंदों की 3 साला पानी नहीं मिल रहा है। पानी और नौजवान पेट समेत न मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातीन, बुजुर्ग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शिकार फिल्टर प्लांट शुरू का सामना है। इसहाकियों का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर खस्ताहाली का के साफ पानी मुहैया करने का टीम के साथ रजब अली हो चुके हैं। सच टीवी न्यूज़, खैरपुर। कोटद्दू का मिनी बाईपास का मुतालबा किया। शिकार है। बारिशी पानी पास इंतहाई खस्ताहाली का आमद रफ्त में शदीद मुश्किल हो गया। शहरियों को। काज़मी की रिपोर्ट।
कोट अदो मुंतखब रखने के लिए दिया गया है। कारकर्दगी पर सवालिया निबंधों के 3 साल का इसे बाईपास तालाब में पानी नहीं मिल रहा है। पानी और नौजवान पेट समेत ना मिलने की वजह से शहर के बच्चे, खातिन, बुजुर्ग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शिकार। फिल्टर प्लांट शुरू का सामना है। इस का हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर खस्ता हाली का शहर के साफ पानी मुहैया करने टीम के साथ रजब अली सच टीवी न्यूज खैरपुरा हो चुके हैं। कोटदू का मैंने का मुतालबा किया शिकार है। बारिशी पानी पास इंतहाई खस्ताहाली का शेखवाला में बिजली के खंभे को गिरे हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन ताहाल बिजली का खंभा न लगाया जा सका। बिजली न होने की वजह से इलाका बकीन सरापा एहतजाज हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बस्ती शेखवाला में 4 दिन गुजर गए बिजली के खंभे को गिरे हुए, ताहाल बिजली का खंभा न लगाया जा सका, जिसकी वजह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वापडा की नाअहली और गफलत की वजह से इलाका मकीन वापडा अफसरान और सियासी रहनुमाओं से नाला नजर आने लगे। बिजली ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा है। खंभा वापडा दी नाअहली दी वजह तो ढह गए। 4 जवान तो मुसलसल बिजली दी बंदिश है। वापडा वाले नाल कांटेक्ट कीते, ओ एन बस कागजी कार्रवाई करन दे चले गए वापस। 4 जवान थी गए। इतनी शिद्दत दी गर्मी दे विच आवाम दा बुरा हाल है। इंतहाई रात दा भी इतना मच्छर होने, खटमल होने, आवाम बेसकूनी दे आलम में। छोटे छोटे बच्चे खुदा न खास्ता इन्हें को मलेरिया वगैरह थी वंजे, डेंगू मच्छर भी था बहुत ज्यादा पाया वेंदे। बस्ती शेखवाला के इलाका मकीनों ने वापडा के आला हुकाम और सियासी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि बस्ती शेखवाला के खंभे को जल्द से जल्द लगाया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। चूनिया के नवाही टाउन कमेटी कंगनपुर के मुलाजमीन ने 25% अलाउंस न मिलने पर बाजों पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। राना अलियास खान की रिपोर्ट। टाउन कमेटी कंगनपुर के तमाम मुलाजमीन ने शाहीन वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन के हुक्म की तामील करते हुए 25% अलाउंस ना मिलने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बल्दियाती मुलाजमीन पाकिस्तान का सबसे पिसा हुआ तबका है। हुकूमत पंजाब के जारी करदा 25% स्पेशल अलाउंस जो बल्दियाती मुलाजमीन को नहीं दिया जा रहा, इस पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और साडा हक इत्थे रख के नारे फिजा में बुलंद किए हुए थे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर हमें अलाउंस नहीं दिया गया तो हम एहतजाजन सफाई, वाटर सप्लाई वगैरह को बंद कर देंगे। उन्होंने मुतलका अथॉरिटीज को वारन करते हुए कहा कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो एहतजाज के लिए मरकजी क़यादत के हुक्म पर सिविल सेक्रेटेरिएट रोड को बंद कर देंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, चूनिया। वतन अजीज का दिफा करते हुए कई पुलिस और दीगर फोर्सेज के जवान शहीद हो चुके हैं। उनमें से पुनवाकल के DIG शहीद अब्दुल अजीज भी शामिल हैं। हमारे अब्बू ने बलोचिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्दों से लड़ते लड़ते पाकिस्तान के लिए जान दी और ज़रूरत पड़ी तो हम भी इंशाल्लाह अपने मुल्क की खातिर जान देंगे। फख्र की बात है कि पन्नो वाकिल की शान और पन्नो वाकिल के बेटे शहीद DIG अब्दुल अजीज़ बुल्लो ने इस मुल्क की खातिर बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए उसने शहादत जाम नोश की थी और हमें फ़ख्र है कि वो पन्नो वाकिल का था और इस मुल्क का था। इंतजामिया सोती रह गई। काले की मंडी के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत गंदगी के ढेर उठाकर जगह को खूबसूरत सरसब्ज लॉन में तब्दील कर दिया। इमरान खुर्शीद की रिपोर्ट। 15 साल से लगे गंदगी के ढेर को मुकामी नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत खूबसूरत और सरसब्ज लॉन में तब्दील कर दिया। अरसा दराज से अहले मोहल्ला इस जगह पर गंदगी और कूड़ा करकट फेंकते आ रहे थे। नौजवान ने कूड़ा उठवाकर मट्टी गिराई और पौधे घास लगाकर खूबसूरत लान में बदल दिया। ये जी जगह इत्थे 15-20 साल तो कूड़ा क्रिकेट पिया सी ते गुजरने इत्थों माल होया सी। ये जिहड़े अपने सनी भाई ने इन्हां दिल च कोई ख्याल आया, इन्हें कल्ले ने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है तो इत्थे पार्क बना छड़िया, घाह वगैरह गा छड़ी है। अजे इन्हूं हैल्प की लोड़ है ताकि इत्थे प्यारे प्यारे बूटे लगन। किसी भी मतलब लोगों ने यहाँ पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिलवाई, ना हमारे मुतल्लिका MNA MP साहब का काउंसलर, किसी ने भी कोई यहाँ पे अच्छा वर्क नहीं किया। हमारे मोहल्ले का एक लड़का है अब्दुल करीम उर्फ सनी गोदी, जिन्होंने अपनी मेहनत आपके तहत ये बेड़ा उठाया। पहले तो उसने गंदगी वगैरह सफाई करवाई है, उसके बाद उसने कड़ी धूप में यहाँ पे घास लगाया। तब्दीली का आगाज़ अगर खुद से किया जाए तो हजूम से कौम बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती।
कैमरा टीम के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। टोबा टेक सिंह के सरकारी अस्पताल में 15 टन ऑक्सीजन गैस स्टोरेज और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में हल्का PP 121 में ग्रां कदर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन सूबाई असम्बली मियां सईद अहमद सैदी ने बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हल्का बर के लिए 8 अरब रुपए की ग्रांट फराहम की, जिससे तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने DHQ अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए 15 टन ऑक्सीजन गैस स्टोरेज और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी के दौरान अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन गैस की कमी का सामना करना पड़ता था, जिस पर मुखय्यर हज़रात के तावन से 90 लाख रुपए से गैस स्टोरेज तमीर करवाया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों को ठंडे पानी की फराहमी के लिए भी अपनी मदद आप के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवा दिया गया है, जिससे दूर दराज से आने वाले साइल इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इस मौका पर इनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद शफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर और शहरी भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर गरीब और बेसहारा अफराद में 8 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए और पाकिस्तान की सलामती, अमन और शोहदा के लिए एक खूसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। आरिफवाला के आवाम के लिए रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने साइलिन के मसाइल सुने। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर आरिफवाला के रेवेन्यू कम्प्लेक्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने अपने मसाइल बयान किए, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू और तहसीलदार गजनफर नवीद चौधरी ने साइलिन के मसाइल और शिकायत सुनकर इनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। रेवेन्यू के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको मौके पे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमारा एक पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक सारे लोग मौजूद होते हैं एक ही छत के नीचे, और इसमें हम दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, मुआयना रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू ने कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद एक छत तले आवाम के मसाइल और शिकायत का फौरी अजाला करना है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफवाला। चकवाल के नवाही इलाके डुडियाल में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह हो या शाम सुई गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। आसिफ अली की रिपोर्ट। डुडियाल में सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सुबह का टाइम हो या रात का, बच्चों को स्कूल जाना हो या नौकरी पेशा अफराद को ड्यूटी पर, दुकानदार हो या मजदूर, खाने के औकात में सुई गैस की लोड शेडिंग करना मामूल बन चुका है। गैस डुडियाल बिल्कुल को नहीं ना कोई मतलब लोड शेडिंग है 7 बजे तो बाद बिल्कुल होंदी को नहीं। सुबह स्कूल के टाइम ते बच्चों स्कूल जाना होंदा, गैस बिल्कुल को नहीं। डुडियाल सोई गैस का कोई दफ्तर शफ्तर नहीं जनाब, ते 20 किलोमीटर दूर है। चकवाल बहना पौंदा कंप्लेन वास्ते, ते फोन करो कंप्लेन वास्ते, कॉल भी को नहीं रिसीव करते। एक तरफ सुई गैस की तवील लोड शेडिंग, दूसरी तरफ सुई गैस की किसी किस्म की शिकायत के लिए 20 किलोमीटर पर सुई गैस का ऑफिस शहरियों के लिए अजाब बन गया। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 2100 रुपए तक पहुंच गया, जो कि मजदूर और दिहाड़ीदार की पहुंच से दूर है। डुडियाल के शहरियों को जहां पर सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग का सामना है, वहीं पर डुडियाल मरकज, जो कि 85 से ज्यादा गाँव पर मुश्तमिल है, यहाँ पर बसने वालों को सुई गैस के मुतल्लक किसी किस्म की शिकायत के लिए 20 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय करके चकवाल जाना पड़ता है, जो कि इंतहाई परेशानी का सबब है। शहरियों ने हुकूमत वक्त और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि डुडियाल में सुई गैस का कंप्लेंट ऑफिस कायम करके शहरियों को दरपेश इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, डुडियाल। जिला अटक की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में पर्ची माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हुजूरों से साजिद महमूद की रिपोर्ट। जिला अटक की सबसे बड़ी गोंदल मवेशी मंडी में पर्ची माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई। मवेशी मंडी में इंटर होते ही फी जानवर 500 रुपए वसूल किया जाता है, जबकि मंडी के अंदर से कोई भी शख्स जानवर की खरीदारी करता है तो वापसी पर फी जानवर 500 रुपए उससे भी वसूल किए जाते हैं, जो कि गरीब आवाम से सरासर नाइंसाफी है। मॉडल मवेशी मंडी गोंदल में मंडी के बाहर सर्विस रोड पर, जो कि NHA की अराजी है, गैर कानूनी तौर पर भत्ता माफिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जिला अटक में पर्ची माफिया एक बार जिला इंतजामिया बार फिर सरगर्म हो गया, जब खामोश तमाशाई बन गई। हुजूरों से साजिद महमूद की रिपोर्ट। जिला अटक की सबसे बड़ी गोंदल मवेशी मंडी में पर्ची माफिया
एक बार फिर सरगर्म हो गई। फी जानवर 500 रुपए मवेशी मंडी में इंटर होते, जबकि मंडी के अंदर से कोई भी शख्स जानवर की खरीदारी का वसूल किया जाता है। जरता है तो वापसी पर फी वसूल किए जाते हैं, जो कि जानवर 500 रुपए उससे भी गरीब आवाम से सरासर नाइंसाफी है। मॉडल मवेशी के बाहर सर्विस रोड पर, जो कि NHA की अराजी है, कि मंडी गोंदल में मंडी के गैर कानूनी तौर पर भत्ता माफी। जिला मंडी में पर्ची माफिया एक की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हुजूरों से साजिद महमूद बार फिर सरगर्म हो गया। जब तक की सबसे बड़ी गोंदल मवेशी की रिपोर्ट, जिला एक बार फिर सरगर्म हो गई। फी जानवर 500 रुपए मंडी में पर्ची माफिया, जबकि मंडी के अंदर से कोई भी शख्स जानवर की खरीदारी मवेशी मंडी में इंटर होते करता है तो वापसी पर फी वसूल किए जाते हैं, जो कि जानवर 500 रुपए उससे भी गरीब आवाम से सरासर नाइंसाफी है। मॉडल मवेशी वसूल किया जाता है के बाहर सर्विस रोड पर, जो कि NHA की अराजी है, कि मंडी गोंदल में मंडी के गैर कानूनी तौर पर भत्ता माफी। जिला मंडी में पर्ची माफिया एक की सबसे बड़ी मवेशी मंडी खामोश तमाशाई बन गई। कि जिले इंतजामिया हुजूरों से साजिद महमूद बार फिर सरगर्म हो गया। जब तक की सबसे बड़ी गोंदल मवेशी की रिपोर्ट, जिला एक बार फिर सरगर्म हो गई। फी जानवर 500 रुपए मंडी में पर्ची माफिया, जबकि मंडी के अंदर से कोई भी शख्स जानवर की खरीदारी मवेशी मंडी में इंटर होते करता है तो वापसी पर फी वसूल किए जाते हैं, जो कि जानवर 500 रुपए उससे भी गरीब आवाम से सरासर ना वसूल किया जाता है। के बाहर सर्विस रोड पर, जो कि NHA की अराजी है, इंसाफी है। मॉडल मवेशी गैर कानूनी तौर पर भत्ता माफी। जिला मंडी गोंदल में मंडी के में पर्ची माफिया एक खामोश तमाशाई बन गई। की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जिले इंतजामिया हुजूरों से साजिद महमूद बार फिर सरगर्म हो गया। जब तक की सबसे बड़ी गोंदल मवेशी की रिपोर्ट, जिला एक बार फिर सरगर्म हो गई। फी जानवर 500 रुपए मंडी में पर्ची माफिया, जबकि मंडी के अंदर से कोई भी शख्स जानवर की खरीदारी मवेशी मंडी में इंटर होते ही वसूल किए जाते हैं, जो करता है तो वापसी पर फी जानवर 500 रुपए उससे भी गरीब आवाम से सरासर ना वसूल किया जाता है। जब बाहर सर्विस रोड पर, जो कि NHA की अराजी है, इंसाफी है। मॉडल मवेशी गैर कानूनी तौर पर भत्ता माफी। जिला मंडी गोंदल में मंडी के में पर्ची माफिया एक की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बार फिर सरगर्म हो गया। जब हुजूरों से साजिद महमूद कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार से कबल आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो गई है। LPG कीमतों में इजाफा होने के बायस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के साथ कारोबार करने वाले दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रोज बरोज LPG कीमतों में इजाफा होने के बायस कारोबार भी सख्त मुतासर हुआ है। पहले कीमतें बहुत कम थी, 120-130 रुपए किलो चल रही थी। जब गरीब गुरबा, चिप्स वाले, छोटे बड़े आदमी ज़्यादा से ज़्यादा गैस भरवाते थे, अभी जब से 180 रुपये रेट हो गया, 190, 170, इससे बहुत से छोटे छोटे जो कारोबार है वो बिल्कुल बंद हो गए। वो बहुत परेशान है। 100 रुपये भराने वाले क्या भरवाएं, क्या कमाएंगे। दादू की आवाम ने तब्दीली सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि LPG कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब थईम, सच TV, दादू। मुजफ्फरगढ़ में खाद की कीमतों में कमी न आ सकी। बढ़ती हुई महंगाई से किसान मुआशी बदहाली का शिकार होने लगे। मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में इस पेशे से वाबस्ता अफराद बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि आए रोज़ खादों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। बवाई से लेकर फसल के तैयार होने तक के अखराजात किसान की कमर तोड़ देते हैं, जबकि खाद की कीमतों में इजाफे से मज़ीद तशवीश में डाल देते हैं। मुजफ्फरगढ़ में काश्तकार हज़रात खाद महंगी होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। किसानों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, मैं मुजफ्फरगढ़ का एक छोटा किसान हूँ। महंगाई के पेश नज़र अब हमारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इसी DAP खाद को देख लें, वो ब्लैक में मिल रही है। मार्केट में DAP खाद गायब है, ब्लैक में बहुत ही महंगी पड़ रही है हमें। काश्तकारी के बाद जब हम अपनी चीज़ें मार्केट करते हैं तो बिल्कुल ही हमें लॉस हो रहा है। गरीब किसानों का कहना है कि हम इतनी महंगी खाद नहीं खरीद सकते, लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसे सस्ता किया जाए ताकि गरीब किसान इसे आसानी से ख़रीद कर फसलों में डाल सके। दूसरी तरफ DAP खाद मार्केट से गायब है, जिसकी वजह से किसानों को मजबूरन महंगी खाद खरीदना पड़ रही है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खाद की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।
है।